we have to do from here. The following list of ecological concerns and the year in which acts were executed in India is correctly matched. So अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो 1972 में आया था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ये 2006 में आया था, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में आया था. अब यही एक है जो हमको भूल रहा था, तो लास्ट वाला बस याद रखना है यहाँ पे, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. The following statements are correct. The Millennium Ecosystem Assessment describes the following major categories of ecosystem services. Provisioning, हाँ सही है. Supporting, regulating, preserving, cultural, nutrient cycling, crop pollination, soil formation and retention, etc. are supporting services. The following is the correct sequence of a food chain. So, अब ये marine food chain को दिखा रहा है. Diatoms सबसे छोटे होते हैं, producers होते हैं, और फिर क्रस्टेशियंस, एक्चुअली नॉट डायटम्स, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, और फिर उसको डायटम्स खाते हैं, फिर डायटम्स को क्रस्टेशियंस खा जाते हैं, और फिर क्रस्टेशियंस को हेरिंग्स जो कि लार्ज फिशेस होती हैं वो खा लेते हैं. तो द ऑर्डर हैज़ टू गो फाइटोप्लैंक्टन्स, डायटम्स, देन क्रस्टेशियंस एंड देन हेरिंग्स. The following statements are true about bionomics. It is synonymous with ecology. It stresses the value of natural systems which influence human systems. Bionomics. It stresses upon the value of natural systems which influence human systems. ठीक है. Among ecocline, halocline, pycnocline and thermocline, the following shows a density gradient, so it is pycnocline. Then desert dwelling animals are called zero coal animals, and in the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing nutrients to the surface. Concerning eco-sensitive zones, which of the following statements is or are correct? Eco-sensitive zones are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. So ये जो शब्दावली है eco-sensitive zone, ये किस legislation में verbatim mentioned है? So eco-sensitive zone are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. The purpose of the declaration of eco-sensitive zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. तो ये जो है eco-sensitive zone जैसा कोई भी शब्द Wildlife Protection Act 1972 में नहीं मेंशन किया गया है, इसकी व्याख्या इस एक्ट में नहीं है. दूसरी चीज़, the purpose of the declaration of eco-sensitive zones is to prohibit all kinds of human activities in those zones except agriculture. अब ये भी ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ठीक है. इको सेंसिटिव जोन तो पहली बात होता ही नहीं है कोई शब्दावली. इससे रिमोटली मिलता जुलता अगर कुछ है तो वो कोर जोन है जो नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह में होते हैं, जहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है. सो दैट इज़ कॉल्ड नेशनल पार्क का कोर एरिया, नॉट इको सेंसिटिव जोन्स. तो दोनों ही स्टेटमेंट ये गलत हैं. वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, दैट इज़ फॉल्स. Human activities have the impacts on the environment, yes, that is true. Then in the grassland, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because water limits and fire. अब grassland में बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं देखने को मिलते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक लेवल के बाद वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है. केवल इतना ही पानी वहाँ पर्याप्त होता है कि घास उग सकती है. और दूसरी बजाय अगर कहीं गलती से पेड़ वगैरह उग भी जाते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट फायर का बहुत ख़तरा होता है, बिकॉज़ नमी बिल्कुल नहीं होती है, ग्रासलैंड में बहुत कम होती है, और जो रेसिनस लकड़ी और पत्ते होते हैं ग्रासलैंड्स में जिसमें बहुत आसानी से फायर प्रोपगेट हो सकती है. सो इन द ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन्स, वाटर लिमिट्स एंड फायर. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय बेनेट. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, अब ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जैसा शब्दावली किसने इस्तेमाल किया? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जैसी शब्दावली बेनेट ने इस्तेमाल किया था. द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड सेरे. द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन. द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन. अब ये करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? देखो, लास्ट वाला होता है स्टेबलाइजेशन और सबसे पहले वाला होता है न्यूडेशन, ठीक है. तो न्यूडेशन, फिर ये माइग्रेशन बता रहा है, फिर एसिसिस, फिर रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन.
तो ये है, बट आई डाउट दैट. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन, लेट मी आस्क दैट. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोटिक सक्सेशन, माइग्रेशन, उसके बाद एसेसिस होता है, ECESIS. The propagules establish themselves in the new environment, growing, germinating and adapting to the local conditions. That is called as esesis. And migration is the first step, that is seeds, spores and other reproductive units are dispersed to a new area by wind, water or animals. उसके बाद esesis होता है, the propagules establish themselves. फिर reaction होता है, the organisms interact with and modify the environment as they grow, which can make it more suitable for other species. और finally stabilization होता है. तो सबसे पहले न्यूडेशन होगा, उसके बाद माइग्रेशन होगा, फिर एसेसिस होगा, फिर रिएक्शन होगा और फिर स्टेबलाइजेशन इज़ द फाइनल स्टेप. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर. तो पॉपुलेशन होती है, फिर उसका लार्जर यूनिट होता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी का लार्जर यूनिट होता है इकोसिस्टम और फिर लैंडस्केप. ठीक है. The following statements about ecosystem are correct. The production at the autotroph level is said to be primary productivity. The secondary productivity refers to the production at the heterotroph level. ठीक है. The production at the autotrophic level is called primary productivity, whereas the secondary productivity refers to the production at the heterotrophic level. With reference to the ecological niche, the following statements are correct. It represents the range of conditions that it can tolerate, the resources it utilizes and its functional role in ecological system. It represents the range of conditions that it can tolerate. Ecological niche मतलब functional role होता है ना, ठीक है. It utilizes and its functional role in ecological system. Each species has a distinct niche. The following is not a subcategory of terrestrial ecosystem. तो ये marine कहाँ से हो जाएगा? The example of lotic system is river. ठीक है. Now biodiversity is described as the range of different species in an environment. Biodiversity means diverse kinds of plants and animals in a particular area. अब देखो, ये अभी हमने ऊपर देखा था कि पॉपुलेशन, कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम और फिर लैंडस्केप. मेरे ख्याल से उसके बाद बायोडाइवर्सिटी आना चाहिए. डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. The destruction of biodiversity is due to the lack of natural habitats of the organism, environmental pollution and destruction of forests. Among biosphere reserve, botanical garden, national park, the following is not an example of in situ conservation strategy. तो biosphere reserve क्या होता है? ये तो, और botanical garden जो होता है ये ex situ होता है botanical garden, ठीक है. Whereas biosphere reserve as well as national park, they are in situ. Then the following list of ecological concerns and the year in which acts were executed. अब ये फिर से क्यों 2 बार प्रिंट हो गया है, अजीब है. The main reason for decrease in biodiversity is natural habitat destruction. Biodiversity has maximum danger from destruction of natural habitats and vegetation. Among destruction of natural habitat, pest control, genetic assimilation and control of predators, the following factor is the most important factor for the loss of biodiversity. That is destruction of natural habitat. Government of India in collaboration with Norwegian government has established a center for biodiversity policy and law at Chennai. ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी बना दिया है चेन्नई में. ठीक है, दिस इज़ मार्क कर लेना इसको, इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन May 22. Then phytoplankton grow in abundance in the limnatic zone. अब ये limnatic zone कौन सा होता है? Limnatic zone is open water zone. हाँ, तो सही बात है, ये तो सही है, but phytoplanktons do not grow in abundance in the limnatic. They grow in abundance in the littoral zone. नहीं, ये गलत कर दिया तुमने. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So phytoplankton grow in abundance in the limnatic zone, and limnatic zone is the open, far extent water zone of any big water body like ocean or sea. तो phytoplanktons grow in abundance in the limnatic zone. और biological diversity day कब मनाया जाता है ये देखना. So this is celebrated on 22nd of May and phytoplanktons grow in abundance where? So phytoplanktons grow in abundance in the limnatic zone because it provides the light they need to grow. That is the basic. The open water zone in a lake that extends to the depth where light can penetrate. It's the primary habitat of
planktonic species and is the most photosynthetically active zone of a lake. So limnatic, देखो एक होता है लिटोरल शैलो कोस्टल रीजन, बट यहाँ पे वाटर क्लियर नहीं होता है, थोड़ा मडी होता है, तो यहाँ पे जो सनलाइट है थोड़ी उसका इफेक्ट कम होता है और इस वजह से फोटोसिंथेसिस उतना ऑप्टिमम नहीं हो पाता है। और बेंथिक तो छोड़ दो बिकॉज उतनी गहराई तक नहीं जा पाता है। प्रोफंडल, द डीप वाटर जोन बिलो द फोटिक जोन वेयर लाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इफेक्टिवली। प्रोफंडल इज अ सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन फोटिक एंड एफोटिक, ठीक है, तो यहाँ भी इतना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो बच गया लिम्नेटिक। दैट इज़ रिलेटिवली हायर ऑक्सीजन लेवल्स एज वेल एज हायर लाइट अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। और ये फार आउट रीचेस फ्रॉम द कोस्टल एरिया होता है इन एनी रिवर बॉडी, और वहाँ वाटर थोड़ा क्लियर होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए और बहुत गहरान में नहीं होना चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज लिम्नेटिक। और वहीं पे सबसे ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। सो द what are phytoplanktons? By the way, they are microscopic floating organisms that are present in the first exposed layer of water, that is called as limnatic. Now phytoplankton grow in abundance in the limnatic zone, that is correct, and limnatic zone is the open water zone. Now the following can be threats to the biodiversity of a geographical area. So global warming है, fragmentation of habitat है, invasion of alien species, ये सारे reasons सही हैं। The following activity strongly threatens biodiversity: destruction of natural habitats and vegetation and झूम cultivation। ये भी अच्छा नहीं माना जाता है झूम cultivation, ठीक है, which is basically shifting cultivation। एक जगह उगाओ फिर काटो जला दो और भाग जाओ, और जलाओ भी मत, ठीक है, तो भी शिफ्टिंग में माना जाएगा। So झूम cultivation is not considered very beneficial for the soil. Then Eastern Himalayas, Eastern Mediterranean region and Northwestern Australia. Which of the above a बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो इसमें ईस्टर्न हिमालयाज़ आएगा, और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कहाँ से आ गया भाई, ये वन ओनली होएगा ये, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज़ देखो 4 रीजन मैंने बताए थे ना, 4 ही होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो। देखो ईस्टर्न हिमालय है, फिर वेस्टर्न घाट है, फिर श्रीलंका तक मतलब वो एक्सटेंड हुआ है, तो वेस्टर्न घाट वाले के अंतर्गत ही आ जाएगा ये वेस्टर्न घाट extended up till Sri Lanka, that is a complete unit. Then तो ईस्टर्न हिमालय एक यूनिट हो गई, फिर वेस्टर्न घाट अप टिल श्रीलंका एक यूनिट हो गया, फिर अंडमान ग्रुप हो गया, और फिर एक ये क्या हो गया, तो यहाँ 3 कैसे हैं, 4 होने चाहिए ना। देखो ईस्टर्न हिमालयाज विच इज़ पार्ट ऑफ हिमालय इकोसिस्टम, ये एक यूनिट हो गई, ठीक है। फिर दूसरी हो गई वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग श्रीलंका, हाँ, तो ये 2 हो गई। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न आया, वो अरुणाचल असम वाला इलाका, इसको मिस कर दिया मैंने, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये तीसरा यूनिट हो गया, और चौथा हो गया अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में फिर वो एक्सटेंशन इंडो बर्मा म्यांमार तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इंक्लूडिंग सुंडालैंड हॉटस्पॉट्स, तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंक्लूडिंग सुंडालैंड एंड बर्मा, इंडो बर्मा रीजन्स, तो ये चौथा यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 हॉटस्पॉट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। एंड द टॉलेस्ट लिविंग ट्री विच इज़ नोन to us, that is sequoia. A species is considered to be extinct if it has not been seen in its natural habitat for 50 years. अब इसका एक पूरा रूल होता है, वो बता देंगे। वैसे एक्सटिंक्ट माना जाएगा जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में 50 साल से ज़्यादा अगर नहीं देखा गया, तो दैट मीन्स इट हैज़ गॉन एक्सटिंक्ट। अमंग ब्रॉड नीश, लार्ज बॉडी साइज, नैरो नीश एंड लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। ब्रॉड नीश नहीं होगा ना, ब्रॉड नीश मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शनल रोल होता है। लार्ज बॉडी साइज़ है तो हाँ, ये दिक्कत का कारण बन सकता है एक्सटिंक्शन के लिए। नैरो नीश भी एक कारण बन सकता है एक्सटिंक्शन के लिए। लैक ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी कारण बन सकता है, बट ब्रॉड नीश तो ये एक तरह से बेनिफिशियल होगा, सो इट विल बी रादर बेनिफिशियल फॉर रिवर्स एक्सटिंक्शन, ठीक है। नाउ इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डेग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई विश आई कुड मार्क इट हियर, बट रिविजन के समय इन वालों को नोट कर लेना अलग से। तो लैंड डेग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030 ये हमारा टारगेट है। द रेड डेटा बुक्स पब्लिश्ड बाय द IUCN contain list of threatened species of the threatened plant as well as animals as well as fungi and protista, ठीक है, fungi and protista। तो protista बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो IUCN में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा वगैरह भी होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक IUCN है।
फिर endangered species are listed in Red Data Book. Red Data Book is concerned with organism facing the danger of extinction. Then the following group of animals belongs to the category of endangered. तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, फिर मस्क डियर है, ये उत्तराखंड के आसपास मिलता है, फिर रेड पांडा एंडेंजर्ड है, और एशियाटिक वाइल्ड एस ये गुजरात वगैरह के पास मिलता है, ठीक है, सॉल्टी रीजन्स के पास। तो अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो ये राजस्थान में मिलेगा। तो ये सारे एंडेंजर्ड है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वालों के नाम लिख रखे हैं, बट दीज आर सिंपली एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज़ एंडेंजर्ड, एशियाटिक वाइल्ड एस एंडेंजर्ड, रेड पांडा इज़ एंडेंजर्ड, एंड मस्क डियर इज़ ऑल्सो एंडेंजर्ड। द फॉलोइंग इंडियन बर्ड इज़ हाईली एंडेंजर्ड, अगेन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम द राजस्थान एरिया। अब ये जैसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोले, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आएगा, और गोल्डन लंगूर भी एंडेंजर्ड का आएगा। दो और याद रख लो, ठीक है। ये एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है ये इसको ढोले बोलते हैं, तो ये भी एंडेंजर्ड है, और गोल्डन लंगूर भी एंडेंजर्ड है। वाइल इंडियाज़ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट एन आउटस्टैंडिंग पेस, द बर्ड पॉपुलेशन इज श्रिंकिंग फास्टली बिकॉज देयर हैज़ बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स। और फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं। The following is not a reason for the loss of biodiversity in Uttarakhand. Afforestation से कहाँ होगा? The following statements about Sikkim are correct. It became an integral part of India in 1975. So Sikkim became an integral part of India in 1975. Remember that. It is considered as a botanist paradise. ठीक है, वहाँ पे बहुत vegetation है, pollution कम है, population भी कम है, diversity बहुत ज़्यादा है. Its population is mainly made up of the Lepchas. That is correct. तो लेपचास कहाँ ज़्यादा मिलते हैं? ट्राइब है ये, बेसिकली शेड्यूल ट्राइब है मेरे ख्याल से लेपचास, एंड दे आर फाउंड मोस्टली इन सिक्किम, एंड सिक्किम गॉट इंटीग्रेटेड इन इंडिया एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन 1975. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। देन द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर एन इन सिटू, बॉटनिकल गार्डन तो एक्स सिटू होता है। द गैस कॉमनली यूज्ड इन द क्रायो बैंक फॉर एक्स सिटू कंजर्वेशन इज नाइट्रोजन. The maximum biodiversity is found in the tropical rainforest. Then in the following ecosystem, the species diversity is relatively higher. Tropical rainforest and coral reefs में species biodiversity ज़्यादा होती है। अब देखो species diversity क्या है? Basically ecosystem जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार की diversities होती हैं। एक होता है genetic diversity, एक species diversity और एक ecosystem diversity। तो उसमें इन प्रकार के रीजन्स में सच एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज वेल एज कोरल रीफ्स द स्पीसी डाइवर्सिटी इज़ हायर, ठीक है। फर्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी दैट वाज मेड इन जामनगर, ठीक है। अभी हमने एक बताया था कि नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ मिलके इंडिया ने एक सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी बनाया था, दैट वाज इन चेन्नई, राइट। फिर हमने एक चीज़ देखी थी कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इज़ टू बी अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल 2030। और अब ये देख रहे हैं कि एक नेशनल सेंटर बनाया है फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, सो दैट इज़ इन जामनगर। नाउ एक तो ये मरीन के लिए जामनगर में है, और एक नेशनल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद नॉर्वेजियन गवर्नमेंट वो बनाया है बायोडाइवर्सिटी के लिए, सो दैट इज़ इन चेन्नई। लेट मी रीड मोर ऑन दैट। सो द गूगल सेज द सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ, इसका पूरा नाम है सेबपॉल, इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉर्वेजियन गवर्नमेंट इन चेन्नई. When was this made? So Government of India in collaboration with the Norwegian government has established a CEBPOL in the National Biodiversity Authority, Chennai, to develop professional expertise in biodiversity policies and laws and develop capacity building. So CEBPOL actually works within the National Biodiversity Authority, and it is made in collaboration with the Norwegian government. Center for, what is its full form? Center for Biodiversity Protection, policies and law. So that is in Chennai, and Norway plus Government of India. So works under National Biodiversity Authority. और दूसरी चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ मेड इन जामनगर, ठीक है। फिर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी कब तक अचीव करनी है? ये 2030 तक अचीव करनी है। एक चीज़ और हमने पढ़ा था बट अभी मिस हो गया है, विल रिवाइज लेटर। ओके, तो जामनगर हो गया। मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। नाउ स्पीशी की बात करो तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलेगा स्पीशी डाइवर्सिटी, लेकिन अगर प्लांट
डाइवर्सिटी की सिर्फ बात करें तो वो ज़्यादा मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशी अकर्स इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। अब ये बड़ा जेनरिक है, दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जहाँ रेन होंगे मतलब रेन फॉरेस्ट होंगे वहाँ एवरग्रीन भी होंगे ही। तो ये कैन से कि जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे नॉट ओनली हायर स्पीशी डाइवर्सिटी बट ऑल्सो हायर प्लांट डाइवर्सिटी भी देखने को मिल सकती है। बायोडाइवर्सिटी चेंजेस अकर इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर अमंग साइलेंट वैली, कश्मीर वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड सुरमा वैली। द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ है इसमें? तो ये साइलेंट वैली में है, विच इज़ इन केरला। एंड बाय द वे, where is this Surma Valley? So where is Surma Valley? So it is in Assam, Chachar district of Assam. The districts of Surma Valley in the pre-independence province of Assam are now the East Khasi Hills in Meghalaya. So the Surma Valley is located in Assam. Surma River is also called as Barak River, ठीक है। So Surma Valley ये कहाँ है? Surma Valley is in Assam, ठीक है। Now the following states is related to Silent Valley project, that is Kerala. Valley of Flowers is situated in Uttarakhand. Point Calumet वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलमियर बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच आर द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स? तो चिलिका है, कोलादेव है और लोकटक भी है और वुलर भी है, सारे हैं, ठीक है। एज ऑन नवंबर 2022 इंडिया हैज़ फॉलोइंग 75 रामसर साइट्स अंडर रामसर कन्वेंशन। अब तो और ज़्यादा हो गए, इनको एक बार देख लेते हैं। सो अब ये अष्टमूडी वेटलैंड है, ये केरला में है। इसका डेट देखो 2002 में बना था ये अष्टमूडी वेटलैंड। भितरकणिका मैंग्रोव्स ये भी 2002 में बना था उड़ीसा में। भोज वेटलैंड ये मध्य प्रदेश में बना था 2002 में। चंद्रताल ये हिमाचल में बना था 2005 में। चिल्का लेक ये उड़ीसा में बना था 1981 में। और दीपोर बील ये असम में बना था 2002 में। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स ये वेस्ट बंगाल में बना था 2002 में। हरिके लेक ये पंजाब में बना था। और होकेरा ये तो जम्मू एंड कश्मीर में बना था 2005 में। कंजली लेक पंजाब में 2002 में। कोलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में बना था 1981 में, ठीक है। काफ़ी पुराना है ये, आई थिंक ये अभी तक का सबसे पुराना है। एक और पढ़ा था हमने, चिलिका 1981, चिलिका, ठीक है। और ये है कोलादेव, ठीक है, राजस्थान। फिर कोल्लेरू है ये 2002 में आंध्र प्रदेश में। लोकटक है मणिपुर में, ये भी 1990, काफ़ी पुराना है। नल सरोवर ये गुजरात में है 2012 में। पॉइंट कैलमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है 2002 में। पोंग डैम लेक ये हिमाचल में है। रेणुका वेटलैंड ये भी हिमाचल में है। रोपर लेक ये पंजाब में है। रुद्र सागर लेक ये त्रिपुरा में है। सांबर लेक राजस्थान में है, ये भी काफ़ी पुराना है 1990। शष्टम कोटा लेक ये भी केरला में है, जस्ट लाइक अष्टमूडी इज़ ऑल्सो इन केरला, शष्टम कोटा इज़ ऑल्सो इन केरला। सुंदरबन वेटलैंड ये वेस्ट बंगाल में है, जस्ट लाइक यहाँ एक और था ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबन वेटलैंड, ये दोनों कोलकाता में है, सही, वेस्ट बंगाल। सुरिनसर मानसर ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर में है। सोमोरिरी ये लद्दाख में है, सोमोरिरी इज़ इन लद्दाख। अपर गंगा रिवर उत्तर प्रदेश में है। वेम्बनाड कोल ये भी केरला में है। वुलर ये भी काफ़ी पुराना है 1990, जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सारे रामसार बता रहे हैं। केशवपुर मियानी ये पंजाब में है और ये कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये पंजाब में है, काफ़ी हाल ही में बनाया गया है 2019 में। नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पंजाब में है। नंदुर माधवेश्वर ये महाराष्ट्र में है। और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा ये भी उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी रिसेंट। फिर समसपुर, सरसाई, संडी ये सब उत्तर प्रदेश में है। समन भी उत्तर प्रदेश में है। असन बराज, असन कंजर्वेशन रिजर्व ये भी उत्तराखंड में है। कबरताल बिहार में है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, बहुत लेटेस्ट बने हैं 2020 के। सुर सरोवर ये भी उत्तर प्रदेश में 2020 में बना था। फिर सोकर ये भी लद्दाख में है। वाधवन गुजरात में है, वाधवन गुजरात में है, जस्ट लाइक नल सरोवर, ठीक है। एंड थोल THOL ये गुजरात में है, ठीक है। तो वाधवन भी गुजरात में है, थोल भी गुजरात में है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। हैदरपुर ये वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड थोड़ा भूल सकता है, दिस इज़ इन उत्तर प्रदेश। फिर बखीरा ये भी यूपी में है। और खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में है, ठीक है, ये भी भूल सकता है, खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इधर जो 2021 वाले हैं ये एक बार फिर से देखो। 2021 में थोल लेक है, थोल लेक इज़ इन गुजरात। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ इन हरियाणा। और सुल्तानपुर ये भी हरियाणा। हैदरपुर उत्तर प्रदेश। बखीरा उत्तर प्रदेश। खिजाडिया गुजरात।
नंदा लेक ये कहाँ है, गोवा में है। और हाई गेम कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। शालबुग ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी ये कर्नाटका में है, ध्यान रखना कर्नाटका में है रंगनाथिट्टू। और सामख्य सागर ये मध्य प्रदेश में है। सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, सिरपुर, सामख्य सागर ये तीनों मध्य प्रदेश में है। थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। पाला वेटलैंड ये मिज़ोरम में है। अनसुपा और टम्पारा ये दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं। हीराकुड रिजर्वायर भी उड़ीसा में है। सतकोसिया ये भी उड़ीसा में है। टम्पारा बता चुके उड़ीसा। चित्रकुंडी तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार, अब देखो पॉइंट कैलमियर जो है वो तमिलनाडु में था, ऊपर हम देख चुके हैं। और ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व दैट इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। फिर कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु। करिकिली और कुंठनकुलन ये तीनों सब तमिलनाडु में है। पल्लीकरनाई, पिछावरम और सुचिंद्रम थेरूर ये तीनों तमिलनाडु में है। और क्या बच गया, उदय मार्तंडपुरम ये भी तमिलनाडु में है। वडवुर, डोंट कंफ्यूज दिस विद वाधवन ऑफ गुजरात। वाधवन एंड खिजाड़िया ये दोनों देखो यहाँ है। खिजाड़िया इज़ इन गुजरात एंड वाधवन इज़ ऑल्सो इन गुजरात, ठीक है। वाधवन एंड खिजाड़िया आर इन गुजरात वेर एज वडवुर इज़ इन तमिलनाडु। फिर वेदांत दंगल ये तमिलनाडु में है। और वेल्लोड बर्ड सेंचुरी ये भी, और वेम्बनूर, तो वेल्लोड और वेम्बनूड ये वेम्बनूर है, नॉट वेम्बनाड, ठीक है, तमिलनाडु में। नाउ द रामसर कन्वेंशन was associated with the conservation of wetlands and Bihar's first Ramsar site is located in बेगूसराय। अब ये बिहार का पहला क्यों पूछ रहा है, एनीवेज बेगूसराय में था पहला। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन विद रेफरेंस टू पार्वती अर्गा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज सिचुएटेड इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी ऑल्सो, इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी एंड वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 February and बायोस्फीयर रिजर्व आर एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू बायो सेफ्टी एग्रीमेंट, बेसिकली जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्टाजीना प्रोटोकॉल बनाया गया था एंड इन जेनेरिक टर्म्स इट इज़ कॉल्ड एज अ बायो सेफ्टी एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ से अगले में देखते हैं।